Good morning, class 6th. As yesterday we have started with this lesson, cases of nouns and pronouns. So today we will continue with this lesson only, grammar lesson. Yesterday I have started explaining you with this lesson. So today also we will continue with this. Today is 31st, Saturday. So we will continue with this chapter. Start writing in your notebooks also, as I have told you earlier. Yesterday also I have told you, write down the topic, cases of nouns and pronouns, chapter 5 of grammar. Then you write the nominative, definition of nominative, give one example, objective case, accusative. I told you you can write from this book also. It is more clear in this book. So I have given you the idea that you can write from here also. Look, yesterday I told you that you can write it from here also. You can just write down. See, you can write it down from here. The objective and the accusative case. It is more clear, more easy, in more easy language here. So write down the objective. This example, you can give one or two examples. Then you can write down the direct and indirect objects. This whole part. And I told you to write up till here. Give these two examples also. It is very much clear in this sentence that what is subject, what is verb, what is direct object and what is indirect object. तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आप जो सेकंड वाला है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट जो है वो आप यहां से लिख लीजिए, ये वाली बुक से. Now we come to the we will start from here. In a sentence, Diya and maths. Here Diya and here maths are both objects of verb taught. ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं किस वर्ड के? taught के. वर्ब क्या है यहाँ पे? taught. दिया इज द इनडायरेक्ट एंड मैथ इज द डायरेक्ट. दिया इनडायरेक्ट हो गई और मैथ जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. इन द सेंटेंस चाइल्ड एंड बुक्स बोथ आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब गेव. चाइल्ड इज द इनडायरेक्ट and the books is the direct object here. So you write like this, just the same way as it is written in the book. Now we come to the third number, possessive case. We have done the objective case, we have done the nominative case, and now we are coming to the possessive case, genitive. A noun is said to be possessive case if it denotes the possession or the ownership. अगर आपको सेंटेंस में पता चल रहा है, यू कम टू नो दैट अबाउट द पोजेशन ऑफ अ थिंग, तो दैट मीन्स वो पोजेसिव केस है नाउन का. अ नाउन इज इन द पोजेसिव केस इज गवर्न्ड बाय द नाउन दैट फॉलोज इट. सी द एग्जाम्पल, दिस इज सनाज पेंसिल. अब आप यू कम टू नो कि पेंसिल किसकी है. हाउ? बिकॉज हियर इट इज रिटन सनाज apostrophe s. So this shows that pencil is the Sana's possession. Who owns the pencil? Sana owns the pencil. तो इसमें जो है possessive केस दिखा रहे हैं कि किसने possess किया हुआ पेंसिल को, किसकी पेंसिल है. तो you come to know about this. This is Sana's pencil. It is very much clear in this sentence. Here Sana is in possessive case. It is the team manager's idea. Whose idea? You will understand this. Whose idea? टीम मैनेजर्स. तो पोजेसिव केस क्या हुआ? टीम मैनेजर्स. टोनीज सिस्टर हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड. हुज सिस्टर? टोनीज. तो हियर टोनी इज हियर टीम मैनेजर एंड हियर सना इज इन द पोजेसिव केस. एम आई क्लियर हियर? नाउ मूव टू पेज नंबर 28.
here when two or more nouns are joined by and a joint possession is meant, the possessive case will be formed by adding apostrophe to the last word. ये तो मैंने आपको भी बताया था. जब टू और मोर नाउन्स ज्वाइन होते हैं ना एंड से, तो जॉइंट पोजेशन बन जाता है. इट इज मेंट बाय जॉइंट एंड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफे टू द लास्ट वर्ड. तो लास्ट वर्ड में हम अपोस्ट्रोफे भी लगा देते हैं, और अगर वहां पे टू नाउन्स हैं तो हम उसमें एंड भी ऐड करते हैं. लाइक सी इन दिस एग्जाम्पल, अमर एंड एंथनी, दो हो गए ना नाउन्स, बट इसमें उन्होंने एंड ऐड किया है. एंथनी लास्ट वाला जो नाउन है उसके पीछे उन्होंने अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया है. ही इज रियली ब्यूटिफुल मीन्स अमर एंड एंथनीज हाउस इज रियली ब्यूटिफुल. दोनों का घर है. हुज हाउस? अमर एंड एंथनीज. तो इसमें अमर एंड एंथनीज इज द denotes that one house belongs to Amar and Anthony. So these are in this part of the noun is in the possessive case. When there are two nouns in the opposition, the possessive case is formed by adding apostrophe. Like see there, Aristotle, Plato's disciple, was a great philosopher. अब जब यहाँ पे two nouns हैं in opposition, तो possessive case क्या हो जाता है? हम apostrophe डाल देते हैं. एरिस्टोटल और प्लाटो दोनों ही बहुत रिनाउंड फिलोसफर्स थे. जो एरिस्टोटल था वो प्लाटो का डिसाइपल था, मीन्स शिष्य था. डिसाइपल मीन्स शिष्य. वॉज अ ग्रेट फिलोसफर. सुखवंत, द प्रोफेसर्स सन. अब इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोफेसर्स के सन की, जो कि सुखवंत है. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लाटोज डिसाइपल मीन्स एरिस्टोटल. तो हम जिसके द्वारा हम उसकी बात कर रहे हैं ना, वहां पे अपोस्ट्रोफे लगेगा. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटोज डिसाइपल, तो हम प्लेटोज यहाँ पे अपोस्ट्रोफे लगाएंगे. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेसर्स सन, सो हियर वी विल ऐड द अपोस्ट्रोफे एस. जस्ट सी, these sentences denote that two nouns are in opposition, means the addition or the application of one noun. Opposition means the addition or the application of one noun to another noun. Means Aristotle भी noun है और आपका Plato भी noun है ना. तो यहाँ पे दोनों ऐड कर रहे हैं हम लोग, या अप्लाई कर रहे हैं दोनों, one noun to the another. तो possessive case of a compound noun is formed by adding s to the last word. तो ऐसे ही जब हम when we are talking about the two nouns and they are in the opposition, we write like this. Now the next case is जब हम compound noun में, when the possessive case of compound noun is formed by adding s to the last word. compound noun है, लंबा सा noun है. compound आपको पता ही है कि more than, उसमें बहुत सारे words या phrases होते हैं. तो उसमें भी हम last जो word है उसके साथ हम apostrophe लगाएंगे. कैसे? देखो, He went to his sister-in-law's house. He went to his, ये compound noun है क्योंकि इसमें 2-3 letters alphabets words आ गए ना, sister in law. तो जो last word है वहां पे हम s लगाएंगे, apostrophe. He went to his sister-in-law's house. T.N. Tyagi, the captain, was called in the commander-in-chief's office. Where he was called? Commander-in-chief's. तो चीफ्स के साथ apostrophe लग जाएगा. If the last syllable of a singular noun ends in s or ce, अगर last syllable s या ce से खत्म होता है, the noun is followed by the word sake. The possessive case of the noun is formed by adding apostrophe only the comma, not s. अगर हमारा लास्ट जो नाउन है सिलेबल अगर एस से या सीई से खत्म होता है, एंड होता है, तो हमारे उस नाउन के पीछे सेक लगेगा और वहां पे एस नहीं लगेगा, सिर्फ कॉमा लगेगा. देयर ओनली वी विल ऐड द अपोस्ट्रोफे, नॉट एस. जस्ट सी, फॉर गुडनेस. नाउ हियर इट इज एंडिंग विद एस, तो हियर वी विल ऐड ओनली द अपोस्ट्रोफे एंड आगे लग जाएगा सेक. फॉर जस्टिस सेक,
तो CE से एंड हो रहा है, एपोस्ट्रोफे कॉमा लगेगा, सेक। कंसाइंस CE कॉमा सेक। क्लियर? जो वर्ड्स लास्ट जो वर्ड है या तो वो S से फिनिश हो रहा है या CE से फिनिश हो रहा है, तो उसके पूरा वर्ड लिखने के बाद एपोस्ट्रोफे लगेगा और उसके साथ सेक लग जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नाउ केसेस ऑफ प्रोनाउंस। अब हम आ जाते हैं प्रोनाउंस पे। नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन कौन सा होता है जी? अ नॉमिनेटिव प्रोनाउन इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। प्रोनाउन आपका तब नॉमिनेटिव होगा अगर वो वर्ब का सब्जेक्ट है। नाउ लुक हियर, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, सेम एज नाउन्स। जैसे नाउन का वो हमने जैसे नाउन्स में पढ़ा था, ऐसे ही हम प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे। अगर वो सब्जेक्ट फॉर्म में है, वर्ब का सब्जेक्ट है, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, सब्जेक्ट क्या हुआ? ये हुआ ना, वर्ब क्या हुआ? ये। तो ये सब्जेक्ट का वर्ब हुआ, वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, तो दैट मीन्स हियर दिस इज द नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। सॉरी। वी रैन, ये वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट, इज वर्ब आ गया, इट सब्जेक्ट, ये वर्ब आ गया। तो यहां पे ये वर्ब्स हैं और ये सब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स ये हमारे नॉमिनेटिव केस में है। अगर ये वर्ब के सब्जेक्ट बनते हैं, अगर ये सब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये सब्जेक्टिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस में वही आ जाता है सेम। Nouns are said to be in objective, the direct objects of the verb, or if they are direct objects of preposition, same as in noun। या तो वो verbs के ऑब्जेक्ट होंगे या फिर वो prepositions के ऑब्जेक्ट होंगे। जहां पे आपने नाउन देखा था वहां आपने प्रोनाउन देखना है, जैसे यहाँ पे था, देखा था आपने, ये देखिए सेम। If they are the direct objects of the verb or direct objects of the preposition। यहाँ ये सब्जेक्ट है, फादर इन लॉ किससे मिलने जा रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ और ये आपका वर्ब हुआ, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे आई की जगह प्रोनाउन होगा, तो वो आपका प्रोनाउन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। लुक हियर, ऑब्जेक्टिव केस। माई मदर गाइड्स मी टू रीच द स्कूल। माई मदर, ठीक है, गाइड्स मी, ये आ गया आपका प्रोनाउन, गाइड्स मी टू रीच द स्कूल। शी गेव अस, शी, ये तो सब्जेक्ट हो गया ना हमारा, गेव अस ये प्रोनाउन हो गया हमारा। सम कैंडी टिप्स फॉर बाइंग अ कंप्यूटर। हियर ही हैज अ न्यू कार, ही बॉट इट, अगेन प्रोनाउन लास्ट वीक। शी टेल्स देम, तो ये आपके प्रोनाउंस हैं, देम, हर, यू, हर, हिम, ये सारे क्या आ गए आपके प्रोनाउंस। तो ये किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यहाँ पे वो या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ब के या ऑब्जेक्ट्स हैं प्रेपोजिशन के। ही बॉट इट लास्ट वीक, ये तो आपका आ गया वर्ब। गेव हर माई रिगार्ड्स, गिव हर माई रिगार्ड्स, ये भी आपका आ गया ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। प्रेज्ड साक्षी फॉर हर करेज, टू हिम, दोज, ये प्रेपोजिशन आ गया आपका। इधर शी गेव अस सम हैंडी टिप्स फॉर बाइंग अ कंप्यूटर। तो हियर all these words which are used to replace the nouns are called the pronouns। आपको ये तो मालूम है। और जहां पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ब के, वहां पे ये, या ऑब्जेक्ट्स हैं प्रेपोजिशन के, तो ये वहां पे ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा ये हुआ ना, ये सब्जेक्ट है हमारा, ही, एवरीवन, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हुए हमारे, ये हुए, ये वाले वर्ड्स। नाउ कम्स द पोजेसिव केस। A pronoun is said to be possessive if it denotes the possession or ownership। सेम, जिससे आपको पता चलता है कि ये
किसकी चीज है, हु इज द ओनर ऑफ दिस थिंग, सो इट इज द possessive pronoun. Like the pen is mine, here this is the possessive pronoun. The watch is yours, you come to know about that this watch is yours, so this is possessive pronoun. Last name on the list was hers, possessive pronoun. The children with the brown hair are theirs, possessive pronoun. The new car is ours, possessive pronoun. The bike that is stolen is possessive pronoun. Father bought a pup, its tail is all white, here it is possessive pronoun. So when we are talking about some possession or some owner, belonging, कि ये चीज हमारी है, जिस वर्ड से पता चलता है वो वर्ड हमारा possessive pronoun हो गया और वो possessive case में हुआ. Fill in the blanks with the correct option in the following sentences. It is they who wanted coffee, not it is they. हमने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग. इट इज दे, वो हैं जिन्हें कॉफी चाहिए, नॉट मी. सो मी अगर हम यहां लिखते हैं तो वो रॉन्ग होगा. इट इज दे हु वांटेड द कॉफी, नॉट आई. यहां पे आई आएगा, ठीक है रजे. नेहा डांसेस मच बेटर देन, Neha dances much better than her. She invited them. She sent the message for you and him. These are pronouns. I know it is she who loves you. All of them are participating. Wait for Riya and me, or I. Wait for Riya and I. Wait for Riya and me. Now we come to the pronoun case comprehensive chart आ जाता है हमारा. यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा I कहाँ पे मी में चेंज होगा. लुक हियर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, आई हो, तो वो ऑब्जेक्टिव में क्या बन जाता है, मी. पोजेसिव में माई बन जाएगा और जेंडर में बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, माई एंड माइन. तो जेंडर अगर चेंज होना है मैस्कुलिन और अगर फीमेल है तो फेमिनिन. सेकेंड पर्सन है, अगर सेकेंड पर्सन हमारा आ जाता है यू. अगर सिंगुलर है तो यू का यू ही रहेगा, यहाँ पे योर बन जाएगा. प्लूरल में भी यू है, यू, योर, योर्स बनेगा. यहाँ पे सेम आते हैं बच्चे. इफ वी आर यूजिंग फॉर द मेल इट विल कम एज द मैस्कुलिन, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल देन इट विल कम फेमिनिन. मैस्कुलिन, फेमिनिन. मैस्कुलिन इज यूज फॉर द मेल्स, फेमिनिन इज यूज फॉर द फीमेल्स. सो हियर आपको ये तीन का ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहीं पे चेंज हो रहे हैं. नंबर आपने देखना है, ठीक है ना. थर्ड पर्सन आ गया हमारा ही, शी, इट, दे. ये हमारे थर्ड पर्सन आ जाते हैं. अगर सिंगुलर है ही, शी, इट, तो हिम बन जाएगा ही का. ऑब्जेक्टिव में हर बन जाएगा. इट का इट ही रहेगा और यहाँ पे इट्स बन जाएगा. और अगर हम पोजेसिव केस की बात करें, ही, हिम और यहाँ पे हिज, हर, हर्स. प्लूरल में दे, देम, देयर या देयर्स फॉर ऑल जेंडर्स. यहाँ पे कोई जेंडर नहीं होता, देयर में सब आ जाते हैं, वेदर दे आर मेल और फीमेल. ठीक है ना. तो ये चार्ट जो है ना आपने अपनी कॉपी में जरूर बना लेना है. ये आप ड्रॉ दिस चार्ट इन योर नोटबुक. ओके, ये आपने बनाना है. ये मैंने आपको 31 को बोला है, मैं यहाँ डेट भी लिख रही हूँ, तो मेरे पास सारा प्रूफ रहेगा कि मैंने आपको 31 को ये बोला था. ओके, इसमें आपको सारा समझ आ जाएगा जैसे मैंने समझाया है कि नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउन है वो आई होते हैं और ऑब्जेक्टिव में वो मी बन जाते हैं. पोजेसिव में वो माई और माइन बन जाते हैं. यहाँ वी है तो ऑब्जेक्टिव में वो अस बन जाएगा. यू है तो यू का यू रहेगा, इधर भी यू है तो यू. और यहाँ पे जो पोजेसिव में है ना,
माई, माइन, आर, आर्स, एस लग जाता है पीछे अक्सर. देयर, देयर्स. डिपेंड अपॉन द सेंटेंस. ये आपको सेंटेंस देख के फिर आपको लगाना है. ही का हिम, हिज, शी, हर, हर या हर्स, इट, इट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी नोटबुक में बना लेना. पहले आप सारी डेफिनेशंस लिख लीजिए विद एग्जांपल्स. फिर आप इधर प्रोनाउंस पे आ जाइए, इधर आप प्रोनाउंस पे आ जाइए, केसेस ऑफ प्रोनाउंस. ये भी तीनों आप छोटा छोटा लिख लीजिए. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, पोजेसिव केस, एंड 2-3 एग्जाम्पल देके उसके बाद आपने ये वाला चार्ट अपनी नोटबुक में बनाना है. ओके, काम खत्म कीजिए अपना. कंप्लीट योर वर्क.